اول خان نے استفسار کیا۔ یقیناً اسی لیے یہ دشمنوں پر استعمال کی گئی ہے۔ محفوظ ہوتی تو میں کسی وقت ویرا پر بھی اس کا تجربہ کر سکتا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ شنکر رائے کی بے ہوشی گہری اور طویل ثابت ہو سکتی تھی، مگر اول خان کے آدمی اس کا توڑ جانتے تھے۔ ہماری چائے کی پیالیاں خالی ہونے تک اس کے ہوش میں آنے کی خبر مل گئی اور میں اول خان کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں شنکر رائے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس کے گھٹنے کے زخم کو اغوا اور منتقلی کی کارروائی کے دوران میں شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں زخم کی پوری ڈریسنگ تازہ خون میں بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ موت کے خوف سے اپنے زخم کی تکلیف کو کسی حد تک بھولا ہوا تھا۔ تو تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں دیکھتے ہی وہ خوفزدہ اور نیم ہذیانی آواز میں تقریباً چیخ پڑا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ میں اسے باز پرس کے لیے کوئی مؤثر اور موزوں ترین ابتدائی سوال سوچ رہا تھا۔ میری چپتی ہوئی بے رحمانہ نگاہوں نے اسے بے چین کر دیا۔ چند ثانیوں کے سکوت پر ہی وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ تو بولتے کیوں نہیں؟ یہاں سب گونگے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت اول خان کو خاموش رہنا تھا۔ قیدی سے باز پر اس کی ذمہ داری صرف مجھے پوری کرنا تھی۔ میں نپے تلے انداز میں پوچھا، تمہارے دماغ میں بغاوت کے جراثیم کیوں پرورش پا رہے تھے؟ بغاوت؟ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کسی سے بغاوت نہیں کی۔ آخر تم یہ کیوں بتاتے نہیں کہ تم کون ہو؟ مجھ سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ میرے سوال کے بعد تمہیں ہر بات سمجھ لینی چاہیے۔ 3 بے جگر اور مسلح آدمیوں کی موجودگی میں باہر کا کوئی آدمی تمہارے گھر پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میری وہ بات جو مانی تھی، اس نے میرے فکروں سے وہی نتیجہ اخذ کیا جو میں چاہتا تھا۔ دہشت سے اس کے سفید دیدے پھیل گئے اور وہ اضطراری انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، میں نے کسی سے بغاوت نہیں کی، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ولی جان سے تم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ولی جان بھی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ یہ سب تمہاری بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنی کھال بچانے کے لیے کئی باتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے دماغ میں سارا زہر تم نے ہی گھولا تھا۔ وہ جھوٹا ہے۔ شنکر رائے بے ساختہ بول پڑا۔ میرے ساتھ اسے بھی اپنے مستقبل کا خوف تھا۔ زندگی بھر کے لیے معذور ہونے کے بعد ہمیں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ گول مول باتیں کرنے کی بجائے صاف اور دو ٹوک انداز میں سب کچھ بتاتے چلے جاؤ گے تو ولی جان کی طرح تمہارے بارے میں بھی ہمدردی سے سوچا جا سکے گا، ورنہ تمہارے مستقبل کا فیصلہ اسی کمرے کی بند دیواروں میں صادر کر دیا جائے گا۔ تو تم دونوں اجنبی ہو؟ قدر توقف کے بعد وہ بولا تو اس کی آواز تکی ہوئی تھی۔ کوئی شناسا چہرہ ساتھ لے آؤ تو میں تم سے کھل کر بات کر سکوں گا۔ تم مجھ سے زبردستی کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ شنکر رائے کی وہ شرط معقول اور چونکا دینے والی تھی۔ اپنی تمام تر ظاہری بدحواسی کے باوجود اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ اندیشہ رینگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پڑ گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا داہنا پنجہ پکڑ کر زور سے اس کے پیر کو جنبش دی اور اس کے حلق سے دردناک چیخیں نکل پڑی۔ میں نے حقارت سے اس کا پنجہ چھوڑ دیا۔ اس زخمی گھٹنے کی تکلیف تم بھوگت رہے ہو۔ جب میں تمہارے جسم پر اس طرح سے لکیریں ڈال کر ان پر مرچیں چھڑکوں گا تو تم گھٹنے کی اذیت کو بھول جاؤ گے۔ اس قدر کمزور پوزیشن میں ہو کر شرطیں پیش مت کرو۔ ہمیں ہر حال میں وہی کچھ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے۔ تمہاری خاموشی کو جرم کا اعتراف سمجھا جائے گا۔ ہو سکے تو تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھٹو مل سے ملوا دو۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں اس سے اپنے معاملات کو خود صاف کر لوں گا، تم درمیان سے نکل جاؤ، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ کھٹو مل، میرے ذہن میں اس نام کی باز گشت گونجی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ وہ نام میرے لیے نیا تھا۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اول خان نے میرے پہلو میں اپنی کوہنی سے ٹوکا دیا اور شنکر رائے سے بولا، کھٹومل راجوائی کوئی ٹٹپنجیا نہیں ہے جو تم اس کا نام ایسی بے تکلفی سے لے رہے ہو۔ تمہیں ہم کو جواب دہی کرنی ہے۔ زبان نہیں کھولو گے تو ہم تمہیں ادھیڑ کر رکھیں گے۔ تم لوگ فراڈ ہو۔ وہ باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر اس کی نظریں اول خان کے چہرے پر جم گئیں۔ مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ مجھے پہلی بار اٹھایا گیا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، مگر میں تمہاری ظالمانہ آواز کو نہیں بھول سکتا۔ تم ہی میرے اصل دشمن ہو۔ پولیس کے ذریعے میری رہائی کا انتقام لینے کے لیے پہلے تم نے مجھے معذور کرا، اس پر بھی صبر نہیں آیا تو آج دوبارہ اٹھا لائے۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں نے کھٹو مل کا نام لے کر سنگین غلطی کی ہے، مگر تم یاد رکھو کہ وہ بہت طاقتور آدمی ہے۔ تم اس کا یا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ ایک غلطی کا اعتراف شنکر کر رہا تھا، دوسری غلطی اول خان نے زبان کھول کر کی تھی، لیکن حساب برابر نہیں ہوا تھا۔ شنکر رائے کا جواب اشتعال انگیز تھا۔ اول خان نے بڑھ کر اسے گریبان سے تھاما اور ایک ہی ہاتھ سے اسے بستر سے کافی اوپر اٹھا کر داہنے ہاتھ سے اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کر کے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ شنکر کے دہانے سے ایک تیز چیخ برآمد ہوئی۔ اول خان کی ایک ہی ضرب نے اس کا جبڑا ادھر ڈالا تھا۔
इस बार खट्टुमल या तुम्हारे किसी और हमदर्द को हवा भी नहीं लग सकेगी कि तुम कहाँ हो। मैंने धमकी दी, तुम सीधी तरह राय रास्त पर न आए तो यहां से जिंदा नहीं निकल सकोगे। तुम मुझे मार दोगे मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। तो अपना जबड़ा सहलाते हुए हकार से बोला, हमारे हाथ बहुत लंबे और जड़ें गहरी हैं। तुम एक शंकर मारोगे तो 10 वली जान इसकी जगह ले लेंगे। तुम किस किस का खून बहाओगे? मदन मोहन, शंकर राय और खट्टुमल राजवानी की तकोन में फंसा हुआ वली जान का नाम वाकई ख्याल अंगेज था। वो बज़ाहिर कोई भारतीय साजिश मालूम हो रही थी जिसे समाजी और सरकारी सतह पर परवान चढ़ाया जा रहा था। इसमें वली जान जैसे जिम्मेदार अफसर का मुलव्विस होना इस अमर की निशानदही कर रहा था कि इन लोगों ने अपने काम को बहुत अर्क-रेजी से दूर तक फैलाया हुआ था। इन लोगों ने काफी दिनों पहले मुल्ला सरकार के जरिए भी एक भयानक साजिश तैयार की थी जिसमें मुसल्लह जत्थों को तरबियत देकर बगावत पर उकसाने की आखिरी तैयारियां की गई थी। मगर इन वक्त पर STF के ताउन से इन ताकतों को कुचल दिया गया था। शायद इस बार फिर वही खेल दोहराया जा रहा था। मदन मोहन के NIC से शुरू होने वाली उस कहानी में अव्वल खान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद चंद अहम अफराद की गिरफ्तारियों से आगे कोई पेशरफ्त नहीं कर सका था। इसके सामने सिर्फ वही नाम थे जो इन गिरफ्तारियों की बुनियाद बने थे। इससे पहले कि वो अपने कैदियों की जुबान से कुछ उगलवाता, उसे पूरा केस पुलिस के हवाले करना पड़ गया और मामला ठप हो गया। इस मरतबा शंकर राय ने खट्टुमल राजवानी का नाम उगला था। वो यकीनी तौर पर कोई अहम आदमी था, जब ही अव्वल खान इस नाम से वाकिफ था। शंकर के सामने ये बात खुल चुकी थी कि हमारा ताल्लुक उसके आकाओं से नहीं था। अव्वल खान की आवाज पहचान कर उसने समझ लिया था कि वो एक मरतबा फिर अपने पुराने दुश्मनों के चुंगल में आ फंसा था। मैंने हेर फेर छोड़कर इस बार खुली कार्रवाई का फैसला कर लिया। इससे पहले कि हजाम के उस तरह से शंकर का जिस्म उधेड़ा जाए, मैं जानना चाहूंगा कि खट्टुमल राजवानी कौन है। मेरे लिए ये नाम नया है, मैंने अव्वल खान से कहा। यह अक़लियतों की सियासत का एक बड़ा नाम है, अव्वल खान ने बताया। कुछ सफारतों और वजारतों से दूर रहता है, मगर इसके नामजद किए हुए लोग हर जगह पाए जाते हैं। बज़ाहिर से अपने वसी ज़मीनों से खतीर ज़री आमदनी होती है, मगर फिर भी इसका शाहाना ठाट बाट वसाइल से मेल नहीं खाता। यूं कहो कि वो बादशाह नहीं, बादशाहगर है। मैंने शंकर के चेहरे पर नजर गाड़ कर कहा, और शंकर उसी का पुराना नमकपार है। तनख्वाह हमारी सरकार से लेता है, मगर काम खट्टुमल के लिए करता है। यह इल्जाम तराशी है। शंकर ने एहतिजाज किया। खट्टुमल से मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो यहाँ हमारे हकूक का सबसे बड़ा अलम बरदार है। मैं अपने साथ होने वाले जुल्म पर उससे फरियाद करना चाहता हूँ। तो मुझे मेरे मजहब की बिना पर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे हो। मजहब, मैंने दांत पीस कर कहा। तुम उसकी आड़ लेकर बच नहीं सकते। याद रखो कि यहाँ तुम्हारी ड्रामेबाजी को देखने और सुनने वाला कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है, इसका दारोमदार सिर्फ हम दोनों के फैसले पर होगा। मेरी बात लिख लो कि बहुत जल्द तुम्हारी नौकरियां जाती रहेंगी। तुम्हारी हरकतों की खबर मिलते ही खट्टुमल पूरी हुकूमत को हिला कर रख देगा। मैं वैसे भी महकमा दाखिला का एक जिम्मेदार अफसर हूँ। महकमा दाखिला का जिम्मेदार अफसर मदन मोहन के नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल में अपनी क्या ऐसी की तैसी कराता था। अव्वल खान ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करके दुरुस्ती से सवाल किया। मैं ऐसे किसी सेल से वाकिफ नहीं हूँ। वो भराई हुई आवाज में बोला, तो मुझे जबरदस्ती किसी नापाक साजिश में फांसने की कोशिश कर रहे हो। ये शराफत से राय रास्त पर आने वालों में से नहीं है, मैंने गुसीली आवाज में कहा। इस पर 3rd डिग्री आजमा कर ही इसकी जुबान खुलवा सकेंगे। मेरे साथ आओ। अव्वल खान ये कहकर खुले हुए दरवाजे की तरफ पलट गया। मैं सीधा अव्वल खान के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। वो अपने आदमियों को शंकर के बारे में नई हदायत देने के लिए बैरक के बरामदे में रुक गया था। मुझे अंदाजा था कि STF वाले जब 3rd डिग्री की बात करते हैं तो वो वाकई 3rd डिग्री ही होती है, जो बड़े बड़े सुरमाओं के चक्के छुड़ा देती है। अव्वल खान अपने काम से फारिग होकर आया तो मैंने उस बारे में कोई सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं इस खट्टुमल के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। मेरा पहला सवाल सुनते ही वो अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ बोला, काश इसका नाम तुम्हारे लिए इतना अजनबी ना होता और मुझे जुबान न खोलनी पड़ती। वो तुम्हारी चाल में आकर रवानी में बहुत कुछ बताता चला जाता। मेरी आवाज पहचानते ही वो भड़क गया। इस इम्कान को मैं बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। तुमने बर वक्त जुबान खोली थी। मैंने उसके एहसास से नदामत को हल्का करने के लिए उसकी बात काट कर नरमी से कहा, खट्टुमल से लाइल्मी की बना पर मैं शंकर को ज्यादा देर तक चक्कर नहीं दे सकता था। तमाम बड़े जमींदारों और जागीरदारों की तरह खट्टुमल भी अपनी जमीनों से गैर हाजिर रहता है। जागीर के मामलात उसके मुलाजिम संभालते हैं। वो अपना ज्यादा वक्त बड़े शहरों में गुजारता है। यहाँ उसकी मसरूफियात क्या रहती हैं? मैंने सिगरेट सुलगा कर पूछा। कभी इसकी बाकायदा निगरानी नहीं की गई, लेकिन सुना गया है कि सियासतदानों के साथ ही वो नामी ग्रामी बदमाशों से भी गहरा मेल जोल रखता है। कई सफारतकारों से उसके करीबी मरासम भी हैं। यह भी तो हो सकता है कि वो खुद ही काम के आदमियों को मदन मोहन के NIC की तरफ हाँकता रहा हो। भारतीय एजेंट हमेशा यहाँ काम के आदमियों की तलाश में रहते हैं।
मेरे पास इस बारे में कोई मुसद्दिका इतला नहीं है। अव्वल खान ने एतराफ़ किया। क्या उसकी सरगर्मियां STF को उसकी तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी नहीं थी? अव्वल खान ने अपने सर को पुरजोर अंदाज में नफ़ी में जुम्बिश दी और कहा, STF सिर्फ कौमी सलामती के खतरनाक दुश्मनों का तहक्कुब करती है। मजहब और अकीदे की बिना पर किसी को मुश्तबा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रह गई इसके हम जहती मरासम की बात, तो ये हमारे यहाँ की रीत बन चुकी है। बहुत से सियासतदानों ने अपने हाशिया बरदारों में खतरनाक गुंडे पाले हुए हैं और कोई उनसे बाज़पुरस नहीं करता। वो इज्जत व एहतराम के साथ गैर मुल्की सफारती तकरीबात में मदऊ किए जाते हैं। फिर खट्टूमल का नाम तुम्हारी याददाश्त के खाने में क्यों महफूज है? मैंने पूछा। मुल्क की मुमताज़ और नुमाया शख्सियात के बारे में हमें कुछ ना कुछ याद ही रखना पड़ता है। शंकर की जुबान से उसका नाम सुनते तक मुझे उस पर कोई शुबा नहीं था। मान फिजा में कर्ब में डूबी हुई एक इंसानी चीख गूंजी, फिर पै दर पै कई चीखें सुनाई थी जिनका सिलसिला यकलख्त मौकूफ हो गया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे किसी ने चीखने वाले का मुंह जबरदस्ती बंद करके उसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया था। ये होता रहेगा। शंकर की आजमाइश शुरू हो चुकी है, तुम अपनी बातें जारी रखो। मेरे चौंकने पर अव्वल खान ने बेपरवाही से इन चीखों के बारे में तबसरा किया। यह खट्टूमल अपना बेशतर वक्त किस शहर में गुजारता है? वो नाम मेरे ज़हन में चुभे जा रहा था। कराची के बाद इस्लामाबाद और पेशावर उसके पसंदीदा शहर हैं। अव्वल खान ने जवाब दिया। पेशावर में ये हिंदू बनिया क्या करने जाता है? मैंने पहलू बदल कर इस्तबा में लहजा में पूछा। फिक्र मत करो, चंद रोज में तुम्हें ये सारी तफसील मिल जाएगी। इसका नाम मेरी लिस्ट पर आ गया है, तो मेरे आदमी इसका पूरा शजरा खोद निकालेंगे। तुमने इसके पसंदीदा शहरों में पेशावर का नाम गिना कर मेरे लिए एक नई राह निकाली है। पेशावर में एक हिंदू बनिए के लिए क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या तुम उस पर ड्रग्स के लेन देन में मुलव्विस होने का शुबा कर रहे हो? यह अंधेरे में छोड़ा हुआ एक बेजवाज तीर है जो निशाने पर भी लग सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल ही बेजवाज नहीं है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी कबाइल में पोस्ट की काश्त पूरे जोरों शोर से जारी है। इस अफीम की भारी मिकदार हेरोइन की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी जबरदस्त आलमी मंडी मौजूद है। यहाँ से ची और माफिया के इकदाम उखड़ जाने के बाद ये मल्टी बिलियन बिजनेस मकामी ताले आजमाओं के हाथ आ गया है। खुफिया आदाद शुमार के मुताबिक माजी करीब में पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बहुत तेजी से ऐसे अरबपति उभरे हैं जो हुकूमत को टैक्स की मद में एक पैसा भी नहीं देते। इन सब का माजी बिल्कुल बेनामो निशान है। ये बावर किया जाता है कि इन्होंने हेरोइन के हेर फेर में बेअंदाजा माल कमाया, लेकिन सियासी मसलहतों की वजह से इनसे कोई बाज पुरस नहीं की जाती। इस काले धन में से सरकारी हिस्सा वसूल करने में क्या रुकावट है? इनकी सरगर्मियां उसी कदर वाज़ेह हैं, तो किसी मसलियत को टैक्सों की वसूली में आड़े नहीं आना चाहिए। सियासी जमातों और शख्सियात को चोरी छुपे दिए जाने वाले भारी चंदे इनको तहफ़्फ़ुज़ की छतरी फराम करते हैं। जो हुक्मरान इनसे बाज पुरस करेगा, ये उसका कच्चा चिट्टा अखबारों को दे देंगे। तुम बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हो। खुदा करे कि तुम्हारे अंदेशे गलत हों। ये मेरे अंदेशे नहीं, खुफिया आदाद शुमार है। वो तलखी से बोला, तुम अखबारों में आए दिन बड़े मगरमच्छों का जिक्र पढ़ते होगे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकारी इजाज़त की दुहाई दी जाती है। इजाज़त की दुहाई देने वाले एहलकारों से कोई ये नहीं पूछता कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। किस्सा दरअसल ये है कि ऐसा शोशा छोड़कर धमकियां दी जाती हैं और 5-10 करोड़ का चंदा या भत्ता मिलते ही इजाज़त के तलबगार गहरी नींद सो जाते हैं। अगली कोई माली जरूरत अटकने तक वो गहरी नींद सोते रहते हैं। लोगों का हाफजा कमजोर हो जाता है, वो इस दौरान में सब कुछ भूल भाल जाते हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी की इजाज़त लेने वाली बातें कभी भी मेरे हल्क से नहीं उतर सकी। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, तुम्हारी बातें दिल को लगने वाली हैं। तुम गलत मौजू में उलझ गए। ये ना भूलो कि हम गैर सियासी लोग हैं, हमें यह बातें जेब नहीं देती। मैं ये कह रहा था कि पेशावर में खट्टूमल की मसरूफियात पर से पर्दा उठने के बाद कुछ भी सामने आ सकता है। हो सकता है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धोकर इजाफी माली वसाइल हासिल कर रहा हो। देखना पड़ेगा कि खट्टूमल शंकर से क्या काम ले रहा था। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, इन दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुक की गुमाजी इसी एक बात से होती है कि खट्टूमल ने उसे न सिर्फ जमानत पर रिहा कराया, बल्कि इसके जख्मी हो जाने के बाद इसकी हिफाजत पर 3 गार्ड्स भी मामूर किए गए थे। कुछ बातें तो जरा सी देर में ही सामने आ जाएंगी। वो हमारी 3rd डिग्री को ज्यादा देर नहीं सह सकेगा। ये हम इन्हीं पापियों पर आजमाते जिनके काले करतूत हर शक को शुबह से बालातर हों। अव्वल खान की वो खुद एतमादी बेजा नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने उसके दफ्तर में आकर इतला दी कि मुल्जिम ने जुबान खोलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। चंद मिनट बाद हम दोनों कैदी के कमरे में पहुंचे तो इबरत का निशान बना छत की एक कड़ी से उल्टा लटका हुआ था। उसे लटकाने के लिए उसी पैर में रस्सी बांधी गई थी जिसका घुटना सुल्तान शाह उड़ा चुका था। शंकर का दूसरा पैर आजाद था। इस तरह इसके बदन का सारा जोर उसके जख्मी घुटने पर मरकूज हो गया था। शंकर का सर जमीन से बमुश्किल 3 फुट बुलंद था। उसके सर के नीचे रखा हुआ बरकी हीटर गो इस वक्त बंद था, मगर
कमरे की फिजा में रची हुई हरारत से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हीटर की मदद से शंकर की खोपड़ी को बहुत अच्छी तरह सेंका गया था। इसके मुंह पर मजबूत पट्टी बंधी हुई थी। दोनों आजाद हाथ बेजान होकर यूं झूल रहे थे कि उसकी उंगलियां बरकी चूल्हे से बस चंद इंच दूर थी। तशद्दुद के नतीजे में उसके आसाब इस बुरी तरह टूट फूट का शिकार हुए थे कि उसकी आजाद टांग भी गैर फितरी अंदाज में लटकी हुई थी। बस उसकी आंखों के ढेलों की हरकत से यह अंदाजा हो रहा था कि उसकी जिंदगी की लड़ी बरकरार थी, वरना उसका वजूद छत से लटकी हुई लाश का समा पेश कर रहा था। इसका थाना आजाद कर दो। अव्वल खान ने वहां पहुंचते ही अपने आदमी को हुक्म दिया। हदायत की फौरी तामील की गई। थाना आजाद होते ही वो जुगाली करने के से अंदाज में यूं जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगा जैसे कुछ बोलने के लिए अपने जामद अजलात को रवा कर रहा हो। मुझे उल्टी सूली से उतार दो, तुम जो पूछोगे मैं बता दूंगा। उसने हाँफते और कराते हुए निढाल आवाज में इल्तिजा की। मेरे लिए तहन्नुम नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। अव्वल खान के इशारे पर उसके एक आदमी ने धीरे धीरे उसे नीचे उतारना शुरू कर दिया। इस अमल में बोझ सहारने वाले जख्मी घुटने के जाविये बदलने की वजह से शंकर की पै दर पै कई चीखें निकल गईं। वो जमीन पर डाला गया तो पसीनों में बुरी तरह शराबूर हो रहा था और उसका सीना लोहार की धूकनी की तरह चल रहा था। हम तुम पर सारी रात बर्बाद कर सकते हैं। चंद सानियों के इंतजार के बाद मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, अगर तुमने खुद पर काबू ना पाया तो हम तुम्हें इसी तरह लटका कर चले जाएंगे और तुम सिसक कर दम तोड़ दोगे। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। वो अजियत से फर्श पर बल खाते हुए कहा, तुम लोग बहुत सफाक और संग दिल हो। मुझे मालूम है कि तुम किसी पर तरस खाना नहीं जानते। खट्टूमल के लिए तुम क्या काम करते हो? मैंने उससे पहला सवाल कर डाला। मैं इसका एहसान मंद हूँ। तो मेरी सरकारी तनख्वाह से दुगनी रकम हर महीने मुझे देता है। इसके एवज मैं इसके लिए हर काम करता हूँ, मगर उसने आज तक मुझसे कोई गैर कानूनी काम नहीं लिया। तुम बिला वजह मुझे अपने जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहे हो। अगर वो कोई गैर कानूनी काम नहीं लेता तो तुम्हें रकम क्यों देता है? मैंने पूछा। वो हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों को खुशहाल और बेफिक्र देखना चाहता है। वो मेरी ही नहीं, मुझ जैसे बहुत से सफेद पोशों की कफालत करता है। तुम किस किस को पकड़ कर मारोगे? मदन मोहन के पास उसी ने तुमको भेजा था। मैंने सवालात का रुख बदल दिया। नहीं, उसने मेरा तारुफ कराया था। मदन ने एक पार्टी में शिरकत की दावत दी और मैं वहां चला गया। होने वाला हल्ला गुल्ला इतना दिल फरेब और रंगीन था कि फिर मैं बाकायदगी से वहां जाने लगा। वो मिलने जुलने, पीने पिलाने और दिल बहलाने वाली पार्टियां होती थी। वहां भी कोई गलत काम नहीं होता था। गलत काम? मैंने होठ भींच कर कहा। इसे तुम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। नशे में धुत होकर तुम जैसे अफसर अपना खाया पिया तक उगल आते थे। इससे बड़ा गलत काम और क्या होगा? मदन ने मुझसे कभी मेरे काम के बारे में एक लफ्ज तक नहीं पूछा। मुझे चक्कर में बिल्कुल बेगुनाह पकड़ा गया था। तुम लोग बिला वजह मेरे खून के प्यासे हो रहे हो। बकवास बंद करो। अव्वल खान उस पर बरस पड़ा। उसकी तहवील से तुम्हारे महकमे की खुफिया रिपोर्टों की कई नकलें बरामद हुई थी जो तुम्हारे सिवा कोई और उसे नहीं दे सकता था। मेरे लिए वो बेजरर कागज थे। इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं। शट अप। मैंने दरमियान ही से उसकी बात उड़ा दी और पूछा, खट्टूमल से तुमको रकम कैसे पहुंचती थी? वह तुमसे कब और कहां मिला करता था? रकम का बंद लिफाफा वो खुद मुझे देता था। कभी मैं उसके घर चला जाता था, कभी वो सेक्रेटेरिएट की तरफ आता तो खुद गपशप के लिए मेरे दफ्तर में आ जाता था। वो बहुत नफीस आदमी है। इसमें बड़ाई या तकब्बुर नाम को कुछ भी नहीं है। तुम उसके पीछे बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। खट्टूमल उसका अंदाता था। वो उसी की गुन गा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी जिम्मेदार सरकारी हैसियत में वो किस तरह मदन मोहन का आलाकार बना हुआ था और खट्टूमल उससे क्या काम ले रहा था। उसे देर तक सवालों जवाबात का सिलसिला जारी रहा। इब्तिदा में वो यही कहता रहा कि खट्टूमल कभी कभार उससे छोटे मोटे काम ले लेता था या किसी की सिफारिश कर देता था। चंद थप्पड़ खाने के बाद उसे याद आया कि उसने खट्टूमल के लिए बस एक ही अहम काम किया था जो गद्दारी के जुमरे में नहीं आता था। उसने थर और राजस्थान के सरहदी इलाके में वाक़े पाकिस्तान की अहम गैर फौजी तनसीबात की फहरिस्त खट्टूमल को दी थी। वो फहरिस्त शहरी दिफा के हवाले से बनाई गई थी। इसमें यह तफसील भी मौजूद थी कि हर मकाम के लिए किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात मौजूद थे और किसी हंगामी सूरत हाल में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के माली और अफरादी वसाइल दरकार थे। शंकर राय का इसरार था कि वो फहरिस्तें किसी भी तरह राजदारी के जुमरे में नहीं आती थीं। इलाकाई बाशिंदे इन तनसीबात के बारे में पूरा पूरा इल्म रखते थे और कोई भी शख्स इन दूर अफ्तादा मकामात की सैर के दौरान में इन फहरिस्तों से कहीं ज्यादा मालूमात यकजा कर सकता था। वो एक कौमी मुजरिम का मुदाफाना नुक्ता नज़र था जो अव्वल खान के लिए जरा भी काबिल कबूल नहीं था। हर मुल्क में हर किस्म की तिजारती फलाई और फौजी सरगर्मियां आवाम की आंखों के सामने ही अंजाम दी जाती हैं और हर शख्स को उनके बारे में कुछ न कुछ मालूम होता है। लेकिन जब वही मालूमात किसी खास करीने से कागजों पर जमा कर ली जाती हैं तो इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शंकर राय की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि उसके दिल दिमाग पर खट्टूमल की हुक्मरानी थी
उसके दिए हुए हर काम को मामूली और बेजरत समझ कर गुजरता था। उसने भारत और मशरक़ वस्ता की रियासतों से आए हुए मुतअद्दिद भारतीयों के क़याम की मुद्दत में तुसी कराई और उसे हमेशा इंसानी हमदर्दी का एक पहलू समझ कर नज़रअंदाज करता रहा। उसे भूल कर भी कभी यह ख्याल नहीं आया कि उसकी मदद से पाकिस्तान में अपने क़याम को तूल देने वाले ऐसे लोग रा और दूसरी भारतीय एजेंसियों के एजेंट भी हो सकते थे। खट्टू मलिक मारूफ आदमी था। अव्वल खान जरा सी मेहनत करके उसकी मकामी क़यामगाह का सुराग लगा सकता था, मगर शंकर राय ने 2 दांतों से महरूम हुए बगैर उसके मकामी ठिकाने के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया था। वो हमें कोस रहा था कि हम खट्टू मल के साथ भी वही सलूक करेंगे जिसे वो भुगत रहा था। अपने बेखबर मुजरिम के जहन को अच्छी तरह टटोलने के बाद हम वहां से निकले तो मेरे जहन में शंकर के मुस्तकबिल के बारे में एक बड़ा सवालिया निशान जागुज़ी हो चुका था।